Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS CCA Rules 1965. It is part 13. In this part, I will discuss Rule 24 to 26. Rule 24, Appellate Authority. Rule 25, Period of Limitation of Appeals. Rule 26, Forms and Contents of Appeal. Definitely the session would be interesting one, and all these rules are very important one, and this part definitely would be useful for uh, multiple choice questions and also descriptive questions. Okay, it is a 13th part and it is updated in 2026. So my friends, please subscribe my channel, like my channel and share my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. So please subscribe my channel and like my channel, share my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. Join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss CCS Classification, Control and Appeal Rules 1965. Rule 24 to Rule 26. It is part 13. First, I will discuss Rule 24. It is related to the Appellate Authority. Rule position is important one, right? So, first I will discuss Rule 24. Who can appeal? क्वेश्चन आपको कोई पूछ सकता है. तो सर्विंग एम्प्लॉइज एक्चुअली कोई suspension order against the order of suspension, against the order of penalties, Rule 11 under CCS CCA Rules 1965, minor and major penalty if imposed on the charge officer, then he can appeal it. Similarly, suppose any denies or varies to his disadvantage his pay allowances related to the stopping the employee at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar. Next one, reverting him. हायर पोस्ट में है, उसको रिवोट कर दिया गया, मगर ये पेनल्टी नहीं है, उसका एग्नेस्ट में भी अपील कर सकते हो. रिड्यूसिंग और विथहोल्डिंग द पेंशन. सो इससे रिलेटेड में बेसिकली हम अपील कर सकते हैं. तो सर्विंग एम्प्लॉइज कर सकता है, और फॉर्मर एम्प्लॉइज में सपोज जो रिटायर्ड है, रिजाइंड है, और जिसका जॉब खत्म हो चुका है, सबके पास पावर है, वो अपील कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हु कैन अपील? सर्विंग एम्प्लॉइज कर सकते हैं. दोज एम्प्लॉइज दे आर वर्किंग नाउ, दे कैन मेक अपील against the penalty order, against the suspension order, or against any anomaly in pay and allowances, against any disadvantage to the pension, or suppose any disadvantage related to the efficiency bar, suppose reverting to the lower post, but it is not a penalty. So इस केस में अपील हम कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, हु कैन बी अपील्ड. सो रूल 23 में मैं अभी बताया कि किस केस में एक्चुअली हम अपील कर सकते हैं. रूल 23 अभी मैं बताया कि यदि माइनर पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज होता है, मेजर पेनल्टी इम्पोज होता है, कि सपोज आपको सस्पेंड कर दिया गया, उसका एग्नेस्ट में आप अपील कर सकते हो. आपका पे एंड अलाउंसेस में सपोज कुछ अनोमली आ गया, कुछ डिसएडवांटेजेस आ गया, इसका एग्नेस्ट में आप अपील कर सकते हो. अपीलेट अथॉरिटी को आप अप्रोच कर सकते हो. नेक्स्ट वन, सपोज आपका पेंशन में कुछ रिडक्शन आया, कि सपोज आपका प्रमोशन होना चाहिए, नहीं हुआ, कि सपोज आपको लोअर पोस्ट में रिवर्ट कर दिया गया, मगर वो एक पेनल्टी नहीं है, क्योंकि मेजर पेनल्टी में जानते हो हायर पोस्ट टू लोअर पोस्ट को रिवर्ट कर दिया जाता है. तो इस केस में हम अपील कर सकते हैं. ठीक है. तो व्हाट कैन बी अपील्ड, वही चीज मैं जो बताया. ठीक है, आप उसको ध्यान दीजिए. यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज द अपीलेट अथॉरिटी. आप किस अथॉरिटी को अपील करोगे वो इंपॉर्टेंट है. ओके, टू हुम एक्चुअली यू अपील. तो अपीलेट अथॉरिटी एक्चुअली फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इट्स द स्पेसिफाइड अथॉरिटी. फर्स्ट चेक द शेड्यूल.
attached to your department's rules or any specific general or special order issued by the honorable president. आपका जो डिपार्टमेंट का शेड्यूल देख लीजिए, इसमें मेंशन है कि हु वुड बी द अपेलेट अथॉरिटी. तो डिफरेंट जो इट मीन्स ग्रुप ए ऑफिसर है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, उनके लिए अपेलेट अथॉरिटी कौन होगा उसमें शेड्यूल में मेंशन है. नहीं तो एक जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट. ऑनरेबल प्रेसिडेंट इशू करते हैं जनरल और स्पेशल ऑर्डर. इसमें भी मेंशन होता है कि किस पोस्ट के लिए अपेलेट अथॉरिटी कौन है. ठीक है, तो ये फास्ट है. तो यदि उस रिलेटेड में क्वेश्चन आता है तो आपको दो चीज को ध्यान देना है. एक जो कॉन्सर्न डिपार्टमेंट का शेड्यूल है और जनरल और स्पेशल ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट. यदि ये सब कुछ नहीं है, इफ एन अथॉरिटी इज एक्सप्लिसिटली नेम्ड देयर, दैट इज वेयर यू मस्ट फाइल योर अपील. तो उसमें तो क्लियरली मेंशन है. आप डिपार्टमेंट का शेड्यूल देख लीजिए, नहीं तो आप ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जनरल और स्पेशल ऑर्डर देख लीजिए, उसमें क्लियरली मेंशन है हु वुड बी द अपेलेट अथॉरिटी. अच्छा, डिफॉल्ट पाथ में क्या है? सपोज आपका डिपार्टमेंट का जो शेड्यूल है उसमें कुछ मेंशन नहीं है कि सपोज देयर इज नो जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड सपोज मेंशन दैट कि फॉर दिस पोस्ट इज द अपेलेट अथॉरिटी. ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. इफ नो स्पेसिफिक अथॉरिटी इज नेम्ड इन द शेड्यूल और ऑर्डर्स फॉर योर केस, तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में the rule provides a safety net hierarchy based on your classification group ABCD to जो पोस्ट है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी पोस्ट, to ensure you always have a higher authority to approach. तो उसमें हम अभी इसमें क्लियरली मेंशन है, हम अभी देखेंगे. मगर डिफॉल्ट पाथ में ये है, यदि कंसर्न डिपार्टमेंट का शेड्यूल में इट मीन्स अपेलेट अथॉरिटी के ऊपर कोई मेंशन नहीं है कंसर्न पोस्ट के लिए, और सिमिलरली देयर इज नो स्पेशल और जनरल ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, तब हम ये मान लेंगे सपोज कि हायर अथॉरिटी जो है, सपोज जो पनिशमेंट ऑर्डर दिया, जो पनिशिंग अथॉरिटी है, पनिशिंग अथॉरिटी मीन्स जो पनिशमेंट दिया, जो पनिशमेंट का ऑर्डर इशू किया, उससे जो हायर ऑफिसर है हम उसको अपील कर सकते हैं. मगर इसमें क्लियरली मेंशन है, आप रूल 24 सबसेक्शन 1I इसमें देखिए, फॉर ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स. तो यहां पर क्लियरली मेंशन है, इफ एन अथॉरिटी इज नॉट स्पेसिफिकली नेम्ड इन द शेड्यूल और बाय द प्रेसिडेंट फॉलो दिस पाथ्स. यदि डिपार्टमेंट का शेड्यूल में कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का जनरल स्पेशल ऑर्डर में ऐसा कुछ अपेलेट अथॉरिटी मेंशन नहीं है, तब हम ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स के लिए हु वुड बी द अपेलेट अथॉरिटी, उसको हम डिस्कस करेंगे. रूल पोजीशन को याद कीजिए, रूल 24 सबसेक्शन 1 उसका सबसेक्शन I में क्लियरली मेंशन है, यदि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे कोई ऐसा, द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यदि वो पनिशिंग अथॉरिटी होता है, जो अथॉरिटी पनिशिंग अथॉरिटी है उनका रैंक है लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. ठीक है, यदि वो पनिशमेंट ऑर्डर देते हैं तब हमारा अपेलेट अथॉरिटी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी रहेंगे. क्योंकि फर्स्ट केस में क्या है, जो अथॉरिटी पनिशमेंट का ऑर्डर दिया, कि जो अथॉरिटी पेनाल्टी इंपोज किया, उसका जो रैंक है इट इज लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. तो उस केस में अपेलेट अथॉरिटी हमारा अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे, क्योंकि जो पनिशमेंट ऑर्डर दिया हुज रैंक इज लोअर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. ठीक है, तब हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारा अपेलेट अथॉरिटी होगा. ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स के लिए, इफ द ऑर्डर वाज मेड बाय समवन एल्स और डायरेक्टली बाय ए हायर लेवल, कोई ऐसा हायर लेवल ऑफिसर है जिसका रैंक हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. ठीक है, जो अथॉरिटी है whose rank is higher than the appointing authority and that authority actually given punishment order or imposing penalty, इस केस में हम अपील करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को. तो दो चीज यहां पर याद रखना है फॉर ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स के लिए. दो चीज आपको मैं ब्रीफली बता रहा हूं और एक बार आप याद रखिए, ट्राई टू रिमेंबर. फर्स्ट वन, जो पनिशिंग अथॉरिटी है उसका रैंक लेस देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तब अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपेलेट अथॉरिटी होंगे. और नेक्स्ट वन, जो अथॉरिटी पनिशिंग अथॉरिटी है, जो पेनाल्टी इंपोज किया है, उस अथॉरिटी का रैंक हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो उस केस में हमारा जो अपेलेट अथॉरिटी होंगे वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट होंगे. ये ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हम ग्रुप
सी एंड डी स्टाफ के लिए चलेंगे। रूल पोजीशन रूल 24 सबसेक्शन 1 उसका जो सेकंड बीट है डबल आई देखेंगे। ग्रुप सी एंड डी स्टाफ के लिए अपील टू द इमीडिएट सुपीरियर, अपील टू द इमीडिएट सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ द पर्सन हु पास द ओरिजिनल ऑर्डर। जिस अथॉरिटी ने पनिशमेंट ऑर्डर पास किया, कि जिस अथॉरिटी ने पेनल्टी ऑर्डर पास किया, उससे जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो हमारा अपेलेट अथॉरिटी होंगे ग्रुप सी एंड डी स्टाफ के लिए। समझ में आ गया? तो इसमें याद रखना है कि ग्रुप सी एंड डी स्टाफ के लिए आप फर्स्ट डिटेक्ट कर लीजिए कि हु इज द पनिशिंग अथॉरिटी, कि द अथॉरिटी हु इम्पोज पेनल्टीज। तो उससे हायर रैंक ऑफिसर को आप अपील कर सकते हो। ठीक है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में एक कॉमन प्रोसीडिंग्स में बताया था रूल 18, जिसमें ऐसा एक चार्ज लगा है जिसमें मोर देन वन एम्प्लॉई इन्वॉल्व है। सपोज कोई फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, उसमें मोर देन वन एम्प्लॉई इन्वॉल्व है, तो वहां पर कॉमन प्रोसीडिंग होता है। तो इस केस में इफ मल्टीपल एम्प्लॉइज वी आर पार्ट ऑफ ए कॉमन प्रोसीडिंग द अपील गोज टू द, अच्छा इसमें जो मैं कॉमन प्रोसीडिंग के ऊपर रूल 18 में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। डिफरेंट एम्प्लॉइज, उनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिफरेंट रहेंगे। तो बेसिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। तो सपोज ये जो एम्प्लॉइज है उनका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिफरेंट है। इसका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक से, एम्प्लॉय बी का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वाई है, एम्प्लॉय सी का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जेड है, लाइक दिस इन माय इमेजिनरी एग्जांपल। तो ये जो कॉमन प्रोसीडिंग जब होगा, हु वुड बी द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इसमें ये तीनों जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उनमें जिसका हायर रैंक होगा, क्योंकि एम्प्लॉय ए के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्स है, एम्प्लॉय बी का अपॉइंटिंग अथॉरिटी वाई है, एम्प्लॉय सी का अपॉइंटिंग अथॉरिटी जेड है। बेसिकली अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, तो यहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज आर डिफरेंट। तो उसमें आप देख लीजिए जिसका हायर रैंक होगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में जिसका हायर रैंक होगा वही कॉमन प्रोसीडिंग का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा। ठीक है। तो इस केस में सपोज मेरा एग्जांपल में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो सपोज नेम ए है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ठीक है। इस केस में हम जब अपील करेंगे, किसको अपील करेंगे ना, जो ऑफिसर एक्चुअली हायर रैंक देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए। ठीक है। कॉमन प्रोसीडिंग केस में सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए है, यदि वो ऑर्डर इशू करते हैं पेनल्टी ऑर्डर, तो यहां पर हम किसको अपील करेंगे ना, जो अथॉरिटी हुज रैंक इज हायर देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए। ठीक है। और एक ऑप्शन दिया, इफ दैट सुपीरियर इज द ऑनरेबल प्रेसिडेंट द अपील गोज टू द प्रेसिडेंट। सपोज इसका जो सुपीरियर अथॉरिटी है प्रेसिडेंट है, तो अपील ऑटोमेटिकली ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर जो सपोज ये देखिए, जो अथॉरिटी बी है उसका रैंक हायर देन ए, ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है कॉमन प्रोसीडिंग का, तो हम अपील करेंगे बी को, क्योंकि जो अथॉरिटी बी है उसका हायर रैंक है, उसका रैंक हायर देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए मींस ए इज द अथॉरिटी ए इज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ द कॉमन प्रोसीडिंग। ठीक है। तो उसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट वन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इफ ए पर्सन हु ओरिजिनली पास द ऑर्डर is later promoted to the position of the appellate authority, you skip them and appeal to their immediate superior. Suppose यहां पर एग्जांपल में देता हूं, सपोज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए थे, पर्सन अथॉरिटी ए था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अभी ये हो गए appellate अथॉरिटी हो गए। सपोज ये हायर माने इनका प्रमोशन हो गया, सपोज प्रमोशन हो गया। ठीक है। जब कंसर्न एम्प्लॉय अपील करने के लिए गया, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी था, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ए था, अभी उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद वो अभी एक्चुअली रूल के हिसाब से अपीलेट अथॉरिटी है। क्या हम इसको अपील करेंगे? इस केस में अपील नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब इंक्वायरी चल रहा था वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी थे, अभी प्रमोशन होने के बाद रूल के हिसाब से वो अपीलेट अथॉरिटी है, तो उससे हम हायर ऑफिसर को जाएंगे
अपील करने के लिए। इसको अपील हम नहीं कर सकते, इस अपीलेट अथॉरिटी को हम अपील नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी था। तो उससे जो हायर रैंक ऑफिसर होगा उसको हम अपील करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन, यूनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज प्रोटेक्शन, रूल 24 सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि प्रोटेक्शन फॉर यूनियन और एसोसिएशन ऑफ एक्टिविटीज। सपोज इफ यू आर एन ऑफिस बियरर ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनियन और एसोसिएशन अंडर द जॉइंट कंसल्टेशन एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन स्कीम and you receive a penalty for your work in that capacity. सपोज आप कोई एसोसिएशन का ऑफिस बियरर हो, आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसी डिपार्टमेंट का जो एक एसोसिएशन है उसका ऑफिस बियरर के आकर में काम कर रहे हो, कि आपका जो एम्प्लॉइज का एक रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है उसका ऑफिस बियरर के आकर में आप काम कर रहे हो, और उसी जब आप काम कर रहे थे उसके उसी टाइम में आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हुआ, तो उस केस में आप डायरेक्टली अपील करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। याद रखिए, यदि आपका जो एम्प्लॉय यूनियन है, आप एक ऑफिस बियरर हो और उसी एम्प्लॉय जब यूनियन का आप ऑफिस बियरर थे, आप जो काम किया था उसी काम में सपोज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हुआ और आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज हुआ, तो उस केस में यदि आप अपील करेंगे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को डायरेक्टली अपील करेंगे। याद रखिए, रिलेटेड टू द यूनियन और एसोसिएशन एक्टिविटीज। ठीक है। और कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन 1 में डिटर्मिनेशन ऑफ अपेलेट अथॉरिटी, इसमें जब हम अपेलेट अथॉरिटी को डिटेक्ट करेंगे, फर्स्ट हमको देखना है हु इज, इट मींस हु इज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। सो सभी समय याद रखिए, जो अपेलेट अथॉरिटी है उसका जो रैंक होगा, उसका रैंक डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से हायर होना चाहिए। तो फर्स्ट आप देख लीजिए, आपको जो पनिशमेंट मिला उसका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन था। ठीक है, उससे हायर रैंक ऑफिसर, उससे सुपीरियर ऑफिसर ही अपेलेट अथॉरिटी होगा। तो इसलिए हम जब अपेलेट अथॉरिटी को डिटरमाइन करते हैं, फर्स्ट हम रैंक और पोजीशन देखते हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का, क्योंकि ऑलवेज द रैंक ऑफ अपेलेट अथॉरिटी इज हायर देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इसीलिए how can you determine the appellate authority? Now for the determination of appellate authority, first you detect the rank of the disciplinary authority, then the superior officer means the officer whose rank is higher than the disciplinary authority would be the appellate authority. यहाँ पर और एक दे दिया, it does not matter if the employee is later transferred to another office. देखिए फॉर एग्जाम्पल, ऑफिसर ए वो ऑफिस एक्स में काम कर रहा था, पनिशेस यू। ऑफिसर ए इन ऑफिस एक्स पनिशेस यू। तो आप ऑफिस एक्स में काम कर रहे थे, आपका ऑफिसर ए आपको पनिशमेंट ऑर्डर दिया। लेटर यू आर ट्रांसफर्ड टू ऑफिस वाई, आपका ऑफिस वाई में ट्रांसफर हो गया, क्योंकि आपको जब पनिशमेंट ऑर्डर मिला था तब हम ऑफिस एक्स में थे और वो ऑफिसर ए एक्चुअली पनिशमेंट ऑर्डर दिया था। तो यहां पर अपील क्या होगा, याद रखिए, जो ऑफिसर ए है उससे आप जब अपील करेंगे, आपका अपेलेट अथॉरिटी हुज रैंक मस्ट बी हायर देन द ऑफिसर ए। वहां पर हम नहीं देखेंगे कि ऑफिस एक्स की ऑफिस वाई, वहां पर हमको देखना है कि जो ऑफिसर ए जो पनिशमेंट ऑर्डर दिया था उसका रैंक क्या है, और उससे सुपीरियर ऑफिसर हमारा अपेलेट अथॉरिटी होंगे। तो वही है, योर अपील विल स्टिल गो टू द अथॉरिटी अबव ऑफिसर है। हम ये नहीं देखेंगे कि नॉट समवन इन ऑफिस वाई में वो ऑफिसर है कि नहीं, वो नहीं है। याद रखिए, आपका ट्रांसफर हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप देखिए आपको जो ऑफिसर पनिशमेंट दिया उसका रैंक क्या है। तो अपेलेट अथॉरिटी होगा हुज रैंक इज हायर देन द ऑफिसर हु हैज इशूड पनिशमेंट ऑर्डर टू यू। वो वहां पर नहीं देखेंगे कि ऑफिस एक्स की, मेरा अभी ऑफिस एक्स में था, मुझे पनिशमेंट ऑर्डर मिला था, मैं अभी ऑफिस वाई को आ गया, क्या वो ऑफिस वाई में ऐसा कुछ ऑफिसर है जिसको मैं अपील कर सकता हूं, हम वो नहीं देखेंगे। हम देखेंगे जो ऑफिसर पनिशमेंट ऑर्डर दिया, जो मेरा अपेलेट अथॉरिटी होगा, वो बेसिकली पनिशमेंट ऑफिसर से हायर रैंक में होगा। ठीक है। नेक्स्ट एक एक्सप्लेनेशन है, द हायर अथॉरिटी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिवेड एंड कैन एक्ट
इट एज appellate authority if rules prescribe it as appellate authority. देखिए इसमें दो चीज बता रहा हूं कि व्हाट द हायर अथॉरिटी डज. कभी कभी क्या है, हायर अथॉरिटी ऐसे जस्ट टेल द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू सस्पेंड एन एम्प्लॉय, जस्ट बोल दिया. तो हायर अथॉरिटी ने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया कि ये एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाए, कि आस्क फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू मिसकंडक्ट, कि ये मिसकंडक्ट है उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो. ये क्या है, ओनली डायरेक्शन और सुपरविजन, ये फाइनल डिसीजन नहीं है, याद रखिए. ठीक है कि नहीं. हायर अथॉरिटी ने ओनली इन्फॉर्म कर दिया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, एक इंफॉर्मेशन है कि ये कॉन्सर्न एम्प्लॉय को मिसकंडक्ट के वजह से सस्पेंड करो, कि उसका अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो. ये एक डायरेक्शन और सुपरविजन है, ये फाइनल डिसीजन नहीं है. एक्चुअली फाइनल डिसीजन जो लेता है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है. ठीक है, कोई हायर अथॉरिटी ने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया, कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया, कुछ डायरेक्शन दे दिया, वो फाइनल डिसीजन नहीं है, याद रखिए. तो नेक्स्ट में देखिए, हु एक्चुअली टेक्स एक्शन, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. वो सस्पेंशन ऑर्डर इशू करेगा, वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेगा, वही फाइनली पनिशमेंट ऑर्डर देगा. तो रियल अथॉरिटी इज द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. मगर जो हायर अथॉरिटी ने सपोज आस्क डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, कि टेल डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू सस्पेंड द कंसर्न एम्प्लॉय फॉर मिसकंडक्ट, वो एक डायरेक्शन सुपरविजन है. मगर एक्चुअल जो अथॉरिटी, रियल अथॉरिटी है, वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है. तो इसके लिए जो ये जो हायर अथॉरिटी है, यहां पर आप देखिए, जो हायर अथॉरिटी है, जो डायरेक्शन दिया, ये जो डायरेक्शन सुपरविजन दिया, ये जो हायर अथॉरिटी, यहां पर मैं लिख देता हूं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा. जो हायर अथॉरिटी जो डायरेक्शन दिया कि इस कॉन्सर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाए, कि इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए क्योंकि ये कॉन्सर्न एम्प्लॉय ये मिसकंडक्ट किया, ये जो डायरेक्शन दिया, ये फाइनल डिसीजन नहीं है. हायर अथॉरिटी डायरेक्शन दे सकता है, हायर अथॉरिटी इन्फॉर्म टू द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कि टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन टू सस्पेंड द एम्प्लॉय. तो इस केस में ओनली इन्फॉर्म. मगर रियल अथॉरिटी कौन है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है. तो ये जो ऑफिसर रूल के हिसाब से ये जो हायर अथॉरिटी है वो अपेलेट अथॉरिटी हो सकते हैं, क्योंकि ये ओनली इनका डिसीजन फाइनल नहीं था. फाइनल डिसीजन लेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. तो जो फाइनल डिसीजन लेगा वो कभी उसी मैटर में अपेलेट अथॉरिटी नहीं हो सकता. मगर कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि हायर अथॉरिटी तो इन्फॉर्म किया, हायर अथॉरिटी, सपोज यहां पर हायर अथॉरिटी ए है और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी है. ठीक है, तो हायर अथॉरिटी ने इन्फॉर्म किया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बी को कि आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करो अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ दिस कॉन्सर्न एम्प्लॉय, कि आप कॉन्सर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करो. तो ये एक डायरेक्शन दे दिया. तो उसी केस में क्या जो हायर अथॉरिटी डायरेक्शन दिया था, क्या वो अपेलेट अथॉरिटी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसका डिसीजन फाइनल नहीं था. डिसीजन जो फाइनल डिसीजन लेता है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लेता है, और सेम मैटर में कभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपेलेट अथॉरिटी नहीं हो सकता. ऑलवेज अपेलेट अथॉरिटी जो पनिशमेंट ऑर्डर दिया, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अल्टीमेटली पनिशमेंट ऑर्डर देगा, पेनल्टी ऑर्डर देगा. तो उससे जो हायर रैंक ऑफिसर है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से जो हायर रैंक ऑफिसर है, वही अपेलेट अथॉरिटी हो सकता है. मगर कभी कोई हायर अथॉरिटी डायरेक्शन देता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, तो ये जो डायरेक्शन के वजह से हम रूल के हिसाब से सपोज वो अपेलेट अथॉरिटी बनते हैं, तो हम मना नहीं कर सकते कि वो अपेलेट अथॉरिटी नहीं होंगे, क्योंकि वो डायरेक्शन दिया था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड करने के लिए. तो ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं है. मगर रियल अथॉरिटी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है. ठीक है, तो हु एक्चुअली टेक्स एक्शन में बताया, जो रियल एक्शन लेता है वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है. तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कभी अपेलेट अथॉरिटी नहीं हो सकता. मगर जो हायर अथॉरिटी ने डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को जो डायरेक्शन दिया, उसी रिलेटेड मैटर में, मगर ये हायर अथॉरिटी अपेलेट अथॉरिटी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, रूल 25. रूल पोजीशन याद रखिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील्स. पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील्स, इसमें हम देखेंगे कि टाइम लिमिट क्या है, आप कितना दिन के अंदर आप अपील करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन भी आता है. जो टाइम लिमिट है, जब आपको पनिशमेंट ऑर्डर, सपोज आज पनिशमेंट ऑर्डर आपको मिला, कल से आपका ये विद इन 45 डेज, यू मस्ट फाइल योर अपील विद इन 45 डेज. सपोज टुडे इज, आपको पनिशमेंट ऑर्डर आज मिला, सपोज आज February 22 है, आज आपको पनिशमेंट ऑर्डर मिला,
कि पेनल्टी ऑर्डर मिला, तो ये जो 45 डेज कल से शुरू होगा, ये जो February 23 होगा वो फर्स्ट डे होगा, वो फर्स्ट डे होगा। ठीक है, तो टाइम लिमिट, यू मस्ट फाइल योर अपील विद इन 45 डेज। यदि आप आज आपको पेनल्टी ऑर्डर मिलता है कि पनिशमेंट ऑर्डर मिलता है, तो उसका 45 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में बता दिया। एक्सेप्शन क्या है, डिस्क्रिशनरी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन हो सकता है, मगर वहां पर अपेलेट अथॉरिटी वो सर्कमस्टांस को देखेंगे। द अपेलेट अथॉरिटी जज द सर्कमस्टांसेस, इट मीन्स चेक द रीजन, फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली द कंसर्न, इट मीन्स चार्ज्ड ऑफिसर कुड नॉट फाइल द अपील। यदि 45 डेज जो डेडलाइन है उसके बाद अपील होता है, वो सर्कमस्टांस को चेक करेगा अपेलेट अथॉरिटी। यदि सर्कमस्टांस एक्चुअली अलाउ करता है, तो वो बियॉन्ड 45 डेज होने से भी वो अपील को रिसीव करेगा अपेलेट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये टाइम लिमिट जो डिस्कस किया है रूल 25, जो क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 का रूल 25 है, वो अपील का जो लिमिट, टाइम लिमिट को इन्फॉर्म किया है। ठीक है, रूल 26 एक्चुअली फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ अपील। फिर अगेन आप रूल पोजीशन को देखिए, रूल 26 फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ अपील, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, यदि जो कंसर्न एम्प्लॉई अपील करेगा इंडिविजुअली, एवरी पर्सन मस्ट फाइल देयर ओन अपील इंडिविजुअली। कभी जॉइंट अपील नहीं होता है, इंडिविजुअली कंसर्न एम्प्लॉई वो अपील कर सकता है। यदि कुछ उसको पनिशमेंट ऑर्डर मिलता है कि पेनल्टी ऑर्डर, तो वो इंडिविजुअली वो अपील करेगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए जो रूल बोल रहा है 26 सबसेक्शन 2, डायरेक्टली बी सबमिटेड, द अपील मस्ट बी सबमिटेड टू द प्रॉपर अपेलेट अथॉरिटी। जो प्रॉपर अपेलेट अथॉरिटी है, आपको याद रखिए, जब आपको पनिशमेंट ऑर्डर मिलता है कि पेनल्टी ऑर्डर, उसमें क्लियरली मेंशन है कि हु वुड बी द अपेलेट अथॉरिटी, टू हुम एक्चुअली यू कैन अपील, उसमें मेंशन होगा। जो अल्टीमेटली जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो पनिशमेंट ऑर्डर इशू करेगा और जो पेनल्टी ऑर्डर इशू करेगा, पेनल्टी ऑर्डर में क्लियरली मेंशन है कि आपको जब पनिशमेंट ऑर्डर रिसीव होगा कि पेनल्टी ऑर्डर रिसीव होगा, उसका 45 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो, और आपका अपेलेट अथॉरिटी ये रहेंगे। ऑलवेज अपेलेट अथॉरिटी, ऑलवेज हुज रैंक इज हायर देन द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। तो प्रॉपर अपेलेट अथॉरिटी को अपील सबमिट करना है, और जब आप अपेलेट अथॉरिटी को कॉपी सबमिट करेंगे, अपेलेट अथॉरिटी को अपील सबमिट करेंगे, उसका एक कॉपी ओरिजिनल अथॉरिटी के पास जाएगा। ओरिजिनल अथॉरिटी मीन्स डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को आप उसका कॉपी दे देंगे। डायरेक्टली आप अपेलेट अथॉरिटी को अपील करेंगे। ठीक है, याद रखिए, डायरेक्टली आप अपेलेट अथॉरिटी को अपील करेंगे, मगर एक कॉपी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को देना है, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आपको पनिशमेंट ऑर्डर दिया था, ओरिजिनल ऑर्डर दिया था। तो ओरिजिनल ऑर्डर एक्चुअली जो दिया था वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है। तो जब आप डायरेक्टली अपेलेट अथॉरिटी को अपील करेंगे, उसका एक कॉपी आपको आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को देना है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मींस पनिशिंग अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मींस पनिशिंग अथॉरिटी। ठीक है, यही है पनिशिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो उसको एक कॉपी देना है, और उसमें इंक्लूड ऑल फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स क्लियरली। आपका लैंग्वेज बहुत रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, कोई कभी अब्यूसिव और इम्प्रॉपर वर्ड्स नहीं होना चाहिए, और वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो अपील के ऊपर और एक बार बता देता हूं, आप डायरेक्टली अपील अपेलेट अथॉरिटी को सबमिट करेंगे, मगर एक कॉपी आपको देना है पनिशिंग अथॉरिटी को, क्योंकि पनिशिंग अथॉरिटी ओरिजिनल ऑर्डर जो पेनल्टी ऑर्डर दिया था पनिशिंग अथॉरिटी ने दिया था। तो पनिशिंग अथॉरिटी बेसिकली आपको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को एक कॉपी देना है। आप जो अपील किया अपेलेट अथॉरिटी को, उसका एक कॉपी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को दे दो। यही है पनिशिंग अथॉरिटी। ठीक है, बाकी आपका पूरा फैक्ट, स्टेटमेंट्स, आर्गुमेंट्स क्लियरली रहेगा, लैंग्वेज बहुत रेस्पेक्टफुल रहेगा, और कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई मिसिंग डिटेल्स नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट वन, द अथॉरिटी दैट पास द ओरिजिनल ऑर्डर मस्ट। इसमें देखिए जो 26 सबसेक्शन 3 बोल रहा है, एक्चुअली जो ओरिजिनल ऑर्डर कौन इशू किया था? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, भाई इसको हम बोलते हैं पनिशिंग अथॉरिटी। ठीक है नहीं, ओरिजिनल ऑर्डर इशू किया था, पेनल्टी ऑर्डर और आपका पनिशमेंट ऑर्डर इशू किया था, तो वो क्या करेंगे, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक कॉपी रिसीव करेगा, चार्ज ऑफिसर से एक कॉपी रिसीव करेगा, और वो कमेंट करेगा। ठीक है, जो आपका जो अपील का कॉपी वो रिसीव करेगा, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, पनिशिंग अथॉरिटी, वो आप जो अपील किया है
उसके ऊपर कमेंट करेगा और फॉरवर्ड एवरीथिंग टू द अपेलेट अथॉरिटी। डू दिस क्विकली, वो डिले नहीं करेगा। नॉट वेट फॉर एनी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द अपेलेट अथॉरिटी। तो याद रखिए, जब आप डायरेक्टली अपेलेट अथॉरिटी को अपील करेंगे, उसका एक कॉपी आपको ओरिजिनल जो ऑर्डर इशू किया था, इट मीन ओरिजिनल जो पनिशमेंट ऑर्डर इशू किया था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, उसको एक कॉपी देना है। तो आप जो अपील किया है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो कॉपी को जब रिसीव करेगा, आप जो अपील किया है उसके ऊपर कमेंट करेगा और जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो इमीडिएटली अपेलेट अथॉरिटी को दे देगा। वो डिले नहीं करेगा और उसमें वेट नहीं करेगा कि मुझे अपेलेट अथॉरिटी से कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, जब आपका कॉपी वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो पनिशिंग अथॉरिटी रिसीव करेगा, वो आप जिस ग्राउंड में अपील किया है उसके ऊपर कमेंट करेगा और कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो इमीडिएटली वो अपेलेट अथॉरिटी को सबमिट कर देगा। ठीक है, प्रोसीजर क्लियर। तो ये 26 सबसेक्शन 3 बोल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट कुछ नोट देख लीजिए। जब जो ओरिजिनल ऑर्डर इशू किया था, एक्चुअली ओरिजिनल ऑर्डर कौन इशू किया था? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। ओरिजिनल जो ऑर्डर इशू किया था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पनिशिंग अथॉरिटी है, तो एक कॉपी तो वो रिसीव करेगा। जब आप डायरेक्टली अपील करेंगे अपेलेट अथॉरिटी को, एक कॉपी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को देना है। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जब वो कॉपी को रिसीव करेगा, वो आप जिस ग्राउंड में अपील किया है उसका एगेंस्ट में वो कमेंट करेगा। तो वो क्या क्या ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द केसेस, वो क्या क्या सबमिट करेगा? ब्रीफ हिस्ट्री, पैरावाइज कमेंट्स ऑन द अपील्स, जो भी अपील्स पिटिशंस है वो पैरावाइज कमेंट करेगा। अनेक्सर जो है डेली कंप्लीटेड नॉट प्रिंटेड, डिसिप्लिनरी फाइल ओरिजिनल, जो ओरिजिनल डिसिप्लिनरी फाइल है, अपील फाइल्स, पिटिशन केस में अपील फाइल्स, सर्विस बुक, और जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है, जो अपार बोलते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, वो ऑफिशियल का, और एनी अदर डॉक्यूमेंट, ये सब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो पनिशिंग अथॉरिटी हैंड ओवर करेगा अपेलेट अथॉरिटी को। तो और एक बार बता देता हूं, जब आप डायरेक्टली अपील करेंगे अपेलेट अथॉरिटी को, उसका एक कॉपी आपको पनिशिंग अथॉरिटी को देना है। पनिशिंग अथॉरिटी बेसिकली आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, और वो कॉपी रिसीव करेगा और जिस ग्राउंड में आप अपील किया है उसका एगेंस्ट में वो अपील करेगा, और आपका अपार और पूरा जो ओरिजिनल फाइल है डिसिप्लिनरी फाइल, और जो अनेक्सर्स है, और बाकी आपका एनी अदर रिकॉर्ड्स है, आपका सर्विस बुक है, और यदि पिटिशंस क्या है, एक रिक्वेस्ट है। पिटिशंस मीन्स आप रिक्वेस्ट सपोज किया है, ठीक है, तो पिटिशन केस में अपील फाइल्स, ये सब वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो एक्चुअली पनिशमेंट ऑर्डर इशू किया था वो अपेलेट अथॉरिटी को हैंडओवर करेगा। ठीक है। नेक्स्ट नोट में, अच्छा, यहां पर फॉरवर्डिंग ऑफ अपील्स याद रखिए। जब एक क्वेश्चन है कि जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉपी रिसीव करेगा, जब एक कॉपी अपील कॉपी, इसमें मैं ब्रीफली बता, जब अपील कॉपी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पर सेम पनिशिंग अथॉरिटी रिसीव करेगा, वो कितना दिन के अंदर वो कॉपी और जो रिलेवेंट रिकॉर्ड्स है वो अपेलेट अथॉरिटी को हैंडओवर करेगा? वही विद इन 45 डेज, टाइम लिमिट वही विद इन 45 डेज। ठीक है। जब आपका जो अपील का कॉपी जब आप डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पनिशिंग अथॉरिटी को दे देंगे, वो क्या करेगा, जो जिस ग्राउंड में आप अपील किया है उसका अगेंस्ट में कमेंट करेगा, आपका अपार, आपका सर्विस बुक, एनी अदर रिकॉर्ड, ओरिजिनल डिसिप्लिनरी फाइल, ये सब अपेलेट अथॉरिटी को हैंडओवर करेगा विद इन 45 डेज। विद इन 45 डेज वही है, सपोज आज मैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हूं, आज मैं अपील का कॉपी रिसीव किया चार्ज ऑफिसर से, सो ये जो 45 डेज के अंदर मुझे अपेलेट अथॉरिटी को देना है। जो कॉपी अपील कॉपी में रिसीव किया उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा, और जो कंसर्न चार्ज ऑफिसर है उसका सर्विस बुक है, उसका अपार है, कोई रिलेवेंट रिकॉर्ड है, ओरिजिनल जो डिसिप्लिनरी केस का फाइल है, मैं हैंड ओवर करूंगा विद इन 45 डेज। तो आज मैं रिसीव किया मींस कल फास्ट डे होगा, कल से काउंट होगा 45 डेज। ठीक है, क्लियर, इसमें कंफ्यूजन नहीं, वही नोट में मैं यहां पर इंफॉर्म किया। नेक्स्ट है पिटिशंस के बारे में मैं बताया था। पिटिशंस मेमोरियल्स, कभी कभी पिटिशन, सपोज हम पिटिशन देते हैं कि उसमें इंटरवेन किया जाए, इसमें इस रिलेटेड मैटर में इंटरवेन किया जाए, तो इसमें पिटिशन एक टाइप ऑफ एक रिक्वेस्ट है। ओके, एक रिकॉर्ड ऑफ रिक्वेस्ट है। ओके, एक एप्लीकेशन बेस है, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें इंटरवेन किया जाए, कि इसको रिजॉल्व किया जाए।
तो फॉरवर्डिंग ऑफ पिटिशंस और मेमोरियल्स टू द प्रेसिडेंट, जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कोई पिटिशंस और मेमोरियल्स जाएगा वो विद 60 डेज लिमिट है, और इसका प्रॉपर चैनल में जाएगा, आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। आपका पिटिशंस एक पर्टिकुलर ऑफिस को जाएगा, डेजिग्नेटेड ऑफिस, जो ऑफिस से एक्चुअली वो प्रोसेस होकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो जब मैं बता देता हूं, जो सपोज पिटिशंस मेमोरियल्स केस में आपका पिटिशन फर्स्ट एक डेजिग्नेटेड ऑफिस को जाएगा, ओके, डेजिग्नेटेड ऑफिस को जाएगा, डेजिग्नेटेड ऑफिस का ऑफिसर के पास जाएगा, ठीक है। जब वो ऑफिसर रिसीव करेगा आपका पिटिशन, उसका 60 डेज के अंदर वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। भाई यहां पर देखिए टाइम लाइन यहां पर है, द रिलेवेंट ऑफिस शुड प्रोसेस एंड फॉरवर्ड दीज पिटिशंस मेमोरियल्स टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग देम, ठीक है। यहां पर दिया है, दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट आल्सो बी फॉरवर्डेड थ्रू द प्रॉपर चैनल, द ऑफिसर अथॉरिटी दैट रिसीव सच ए पिटिशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग इट रीचेस द करेक्ट हायर अथॉरिटी। तो डायरेक्टली तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट इट मींस पिटिशंस रिसीव नहीं करेंगे, उनका कोई इट मींस स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, जनरल ऑर्डर होगा कि ऑन बिहाफ ऑफ मी एक्चुअली दिस ऑफिसर रिसीव द पिटिशन। तो इसमें क्या है, फर्स्ट डेजिग्नेटेड ऑफिस के पास जाएगा, ठीक है, डेजिग्नेटेड ऑफिस के पास आपका पिटिशन चला जाएगा, कि ऑफिसर के पास चला जाएगा, और ये विद इन 60 डेज, ओके, यहां पर दिया है विद इन 60 डेज, जो कंसर्न ऑफिसर है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, फिर जो एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो ऑफिसर रिसीव करेगा पिटिशन को, उनके पास विद इन 60 डेज पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसको पिटिशंस रिलेटेड में जो टाइम लिमिट है 60 डेज है, ठीक है। और यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो पनिशिंग अथॉरिटी है उसका अपील का कॉपी जाता है, तो वो भी 45 डेज के अंदर अपीलेट अथॉरिटी को कमेंट के साथ और जो रिलेवेंट रिकॉर्ड से हैंड ओवर करेगा अपीलेट अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये मेरा जो रूल्स था, रूल 24, 25 एंड 26, ये पार्ट 13 था। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So फिर आप वेट कीजिए, नेक्स्ट पार्ट में फिर रूल 27 से मैं लाऊंगा, जो क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 का रूल 27, ठीक है। आई ब्रिंग रूल 27, तो आप वेट कीजिए। तो आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।